Assalamu alaikum. Today, my topic is gross anatomy. So, the first one is the endoskeleton. Endoskeleton, there are two skeleton types, axial skeleton and appendicular skeleton. Endoskeleton comprises the axial skeleton. The bones of the axial skeleton form the vertical axis of the body. They include the bones of the head, sternum, column, vertebral column, ribs, and breastbone or sternum. The axial skeleton में क्या है 80 bones आ जाते हैं जो वर्टिकल एक्सिस वर्टिक बनाते हैं उनमें क्या हेड बोन्स हेड के बोन आ जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम आ गए रिब्स ब्रेस्ट बोन एंड स्टर्नम बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन the bones of skull is maxilla and mandible. The vertebrae में क्या आ जाते हैं कि cervical vertebrae, thoracic vertebrae, lumbar vertebrae, sacrum and caudal vertebrae, ribs and sternum. These bones are included in the bones of axial skeleton. Endoskeleton, the appendicular skeleton. The appendicular skeleton consists of 126 bones and includes the free appendages and their attachments to the axial skeleton. Appendicular skeleton में ओवरऑल 126 बोन आ जाते हैं जिसकी अटैचमेंट होती है एक्सियल स्केलेटन के साथ उन बोन्स की. अब उसमें आ जाते हैं टू टाइप्स, द पेक्टोरल गिर्डल एंड द पेल्विक गिर्डल. The bones of forelimbs showing the blue color bones in skeleton, the pectoral girdle, the pelvic girdle, bones of hind limbs. Pelvic girdle also called the hind limbs and pectoral girdles also called the forelimbs. Red colored bones are showing the pelvic girdle in the skeleton. बोन्स ऑफ पेक्टोरल गिर्डल. अब पेक्टोरल गिर्डल में कौन कौन से बोन आ जाते हैं बोन्स? नंबर 1 द स्केप्यूला, द ह्यूमरस, रेडियस, द अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस एंड डिजिट्स. These bones are included in the pectoral girdle. सारे बोन ये पेक्टोरल गिर्डल में आ जाते हैं जिनको हम फोर लिम्ब भी कहते हैं. ओके, द बोन्स ऑफ पेल्विक गिर्डल. अब पेल्विक गिर्डल या हाइंड लिम्स में कौन से बोन आ जाते हैं? देन वन इज पेल्विस, comprises the ilium, ischium and pubis. The femur, patella, tibia, tarsus, metatarsus and digits. These bones included in pelvic girdle. Okay, bone. What is bone? The bone is one of the hard parts of the skeleton of a vertebrate animals. There are types of bone, 5 types of bones. The types of bones are: one is the long bone, the short bone, flat bone, irregular bone and sesamoid bone. ये 5 टाइप्स हैं बोन्स की: लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड sesamoid bones. Long bones bearing the structure. The structure of long bones are more length, less width. इनकी लेंथ ज़्यादा होती है, हाइट इनकी ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी विड्थ जो है वो कम होती है. और where they are located in the appendicular skeleton, forelimbs and hind limbs. These bones जो पाए जाते हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में पाए जाते हैं. उसमें फोर लिम्स भी आ गए, हाइंड लिम्स भी आ गए, पेक्टोरल और पेल्विक गिर्डल. मेन फंक्शन
The long bones have main function to maintain major leverage system. ये क्या करता है कि ये बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है, लीवरेज सिस्टम का में काम करता है ये. Okay, the short bone. The short bone comprises the structure cube shape. Length and width are almost equal. They have the length and width are almost equal. उनकी जो लेंथ है या विड्थ है, ऊंचाई वो ऊंचाई या चौड़ाई वो एक जैसी होती है. क्यूब शेप्ड होते हैं ये. और ये लोकेटेड कहाँ पे होते हैं, पाए जाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में. लेकिन कहाँ पे, इसका एग्जांपल है रिस्ट एंड एंकल बोन में पाए जाते हैं ये. मेन फंक्शंस ऑफ दीज शॉर्ट बोन्स आर द वेट बियरिंग बोन्स. दीज आर आल्सो कॉल्ड द वेट बियरिंग बोन्स. इनको वज़न बर्दाश्त करने वाले बोन भी कहा जाता है, शॉर्ट बोन्स को. फ्लैट बोन. द फ्लैट बोन्स आर फ्लैट एंड थिन, provides large surface area for skeleton muscles to attached. ये क्या करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर एक तो फ्लैट और थिन होती है, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, लार्ज सरफेस एरिया फॉर स्केलेटन मसल्स टू अटैचमेंट. सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं स्केलेटल मसल्स को कि उसके साथ अटैच रहे. लोकेशन कहाँ पे पाए जाते हैं, द बोथ appendicular as well as axial skeleton. The example is scapula and sternum. Appendicular and axial skeleton में पाए जाते हैं, और इसका एग्जाम्पल है scapula and sternum bones. Main function, they provides the protection to internal organs such as heart, lungs, liver, etc. मेन फंक्शन ये क्या करते हैं कि एक तरह का प्रोटेक्शन करते हैं और बचाते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को. जिस तरह जिनमें इंटरनल ऑर्गन्स कौन है, हार्ट, लंग्स, लिवर एंड अदर ऑर्गन्स जो आ जाते हैं, इनकी हिफाजत करते हैं ये बोन्स. इरेगुलर बोन्स, दे हैव नो रेगुलर शेप बट कॉम्प्लेक्स शेप. The location, spinal cord and facial bone, vertebrae. इनको कोई भी इनकी रेगुलर शेप नहीं होती, और ये कॉम्प्लेक्स शेप्ड होते हैं. और ये पाए, इनको बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, वर्टिब्रेट. कहाँ पे लोकेट होते हैं, ये स्पाइनल कार्ड में होते हैं और फेशियल बोन्स में. मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू नर्व्स टिश्यू. ये नर्वस टिश्यू को, नर्व्स को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं. इरेगुलर बोन्स. सीसमाइड बोन्स. द सीसमाइड बोन्स स्ट्रक्चर आर स्मॉल राउंडेड शेप, स्मॉल बट राउंडेड शेप, अटैच विथ टेंडन्स. ये स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं और राउंड शेप होते हैं. इनकी अटैचमेंट होती है टेंडन्स के साथ. They are attached to with the tendons. Location कहाँ पे पाए जाते हैं, in some joints, where in the sesamoid bones. The sesamoid bones are structurally small, rounded shape. These are attached with tendons. स्मॉल होते हैं और राउंड शेप होते हैं, टेंडन्स के साथ इनकी अटैचमेंट होती है. लोकेटेड कहाँ पे होते हैं, in some joints like knee joints. जॉइंट्स में पाए जाते हैं. इसका एग्जांपल है नी जॉइंट्स. मेन फंक्शन क्या है, टू मेंटेन प्रेशर इन जॉइंट्स टेंडन. ये प्रेशर को मेंटेन करते हैं, बॉडी का प्रेशर या चलने में जो प्रेशर पड़ता है बोन्स पे, उसको ये मेंटेन करते हैं. सीसमाइड बोन्स. स्मॉल राउंडेड शेप, अटैच विथ टेंडन्स, लोकेटेड कहाँ पे, इन सम जॉइंट्स, नी जॉइंट्स. और मेंटेन क्या करते हैं, प्रेशर मेंटेन करते हैं टेंडन जॉइंट्स में. these are the sesamoid bones. Compact bone contains vessels, nerves and marrow, can repair itself. Organic material gives elasticity.
inorganic matter gives rigidity. Long bones. These are characterized by shaped or diaphysis, formed from a thick outer layer of compact bone and an irregular medullary cavity. Long bones have two ends, proximal epiphysis and the distal epiphysis, covered by a thin layer of cortical substance. Both extremities contain spongy bone. ये होते हैं शेफ्ट और डायफाइसिस के वहाँ पे ये होते हैं और फॉर्म क्या करें थिक आउटर लेयर ऑफ कम्पैक्ट बोन थिक आउटर लेयर कम्पैक्ट बोन का होता है वहाँ पे एंड इनर मेडुलरी कैविटी में भी लॉन्ग बोन से टू एंड्स इसकी टू एंड्स हो दो इसके एंड्स होते हैं दो पार्ट्स होते हैं प्रोक्सिमल और डिस्टल एपिफाइसिस दैट इज कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ कार्टिकल सब्सटेंस एक्सट्रीमिटीज दोनों एक्सट्रीमिटीज पे क्या होते हैं स्पंजी बोन्स होते हैं इसके और शार्ट बोन क्या है डिफरेंट फॉर्म्स these are in different forms cylindrical cubic or round short bones are cylindrical or cubic or rounded होते हैं such bones contain an extensive lattice work of spongios in which hemoreticular tissue is present ये क्या करते हैं एक्सटेंसिव लेटिस वर्क स्पंजियोज में होते हैं इनमें क्या होता है हेमोरेटिकुलर टिश्यूज पाए जाते हैं एग्जाम्पल्स क्या हैं वर्टिब्रल कॉलम एंड द हॉक जॉइंट फ्लैट एंड वाइड बोन्स टू लेयर्स ऑफ कम्पैक्ट बोन्स सराउंडिंग देयर in spongy bone dipole or air sinuses is examples क्या है इसके scapula iliac bone and ribs some bones of the skull are flat bones surrounded cavities of air कुछ bones जो होते हैं वो flat bones होते हैं और जो air cavities के surroundings में पाए जाते हैं जिनको ओसा न्यूमेटिका भी कहा जाता है एग्जाम्पल्स क्या है इसका मैक्सिला एंड एथमाइड बोन द इरेगुलर बोन्स आर द वेज शेप बोन्स ऑफ द स्कल एग्जाम्पल्स क्या है इसके स्फेनॉइड पेरास्फेनॉइड एंड बेसिस्फेनॉइड बोन्स सीसमाइड बोन्स आर फाउंड क्लोज टू द जॉइंट्स द फुट जॉइंट्स एंड आइदर lie beneath or embedded patella or tendon ये पाए जाते हैं सीसमाइड बोन्स पाए जाते हैं जॉइंट्स के अतराफ में जहाँ पे फुट जॉइंट्स होते हैं या उनकी या एम्बेडिंग होती है उसमें जिस तरह पटेला या टेंडन इस तरह से सो थैंक यू फॉर वी विल मीट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर अगेन थैंक्स फॉर यू वॉचिंग